Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT 362. In the last lecture we finished on chapter 12. We were discussing topics of chapter 12, which is basically concerned with inventory management. Today we will be continuing with this chapter. Let me give you first an outline of this chapter, what you can expect in this chapter. First of all, we are going to study what is the importance of inventories, different functions of inventory, what are different types of inventory. We have already discussed this in the previous lecture. Then we are going to study topics about inventory management. Some of the important topics are ABC analysis, record accuracy, and cycle counting. Then in the end of this section we will be studying control of service inventories. So overall inventory management has four topics, which is ABC costing, ABC analysis, record and accuracy, cycle counting, and control of service inventories. Then we are going to study some of the inventory models in this chapter. What is interesting is various inventory models that are discussed. First of all, in this section or in this part of this chapter, we will be studying what is the difference between independent and dependent demand. We will also be studying what are different costs related to inventory, holding costs, ordering costs, and setup costs. Although I have discussed these things previously in my presentations along different points, but we will be concentrating on these cost, inventory related costs more in this chapter. Then we are going to see some of the interesting models when your demand is independent. By independent demand we mean if the demand of one product in the inventory is going up, the demand of other is unaffected by that. So there is no interrelationship between the products which are within the inventory. The first model which we will be discussing in inventory models for independent demand is basic economic order quantity, EOQ. It's a very famous model pertaining to inventory management. We will be studying about minimizing costs, reordering points, production order quantity model, quantity discount models. Basically quantity discount models are used when your supplier is giving you an option कि जी आप मुझसे इतनी यूनिट्स ख़रीदोगे तो इस कॉस्ट में मिलेगी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदोगे तो कॉस्ट कम होगी, तो इसको क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल्स कहा जाता है. We will also be discussing probabilistic models and safety stocks. When there is a level of uncertainty in the future, then we will always use probability distributions. When we will use probability distributions to make sense of the future, then we are going to use probabilistic models. And in the last part of the sections we will be studying single period model and fixed period model systems. So overall this chapter, the important topics in this chapters are how we manage inventory, what are different models of inventory management, what are the different costs related to inventory management, and what are different types of inventories, what are the functions of inventories, and what are the different models for independent demand. Now in this chapter, which is chapter 12, we will only discuss inventory models for independent demand. Independent demand means if one product in your inventory if the demand of one product in your inventory is rising, it is not affecting other products in your inventory. So we will be only discussing the inventory models for independent demand. The chapter 14 of this book discusses inventory models for dependent demand. So that chapter discusses some other models in which your inventory has some kind of dependency in it.
and in that case you can use those models. But if the products which you are storing in your inventory, they are independent of one another, independent in a way that the demand of one product does not affect the demand of other products in the inventory, then we will be applying these models which we are discussing in chapter 12, which is inventory management. In the last lecture we concluded our discussion on inventory management, managing inventory, and we discussed two important concepts in any inventory management. First of all, you have to classify your items in your inventory, and second is to have an accurate record of all the items in your inventory. किसी गोदाम के अंदर आप चीज़ स्टोर करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना आपने कौन सी चीज़ स्टोर की है और कितनी क्वांटिटी में स्टोर किया. तो किसी भी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दीज टू इंफॉर्मेशंस के जी कौन सी आइटम या किस कैटेगरी की आइटम आपने स्टोर की है और कितनी क्वांटिटी में स्टोर की है. और जो आपका रिकॉर्ड है, इज इट एक्यूरेट और नॉट. ये ना हो कि जी आपके रिकॉर्ड में तो पता चल रहा हो कि जी 1800 चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं मगर एक्चुअली इन्वेंट्री के अंदर 2000 चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं. तो रिकॉर्ड कीपिंग, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग और एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ऑफ योर आइटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट. Let's start with the topic, today's first topic, which is ABC analysis. ठीक है, ABC analysis basically इसका जो basic premise है कि आपने you have to establish policies that focus on few critical parts and not the many trivial ones. कि जी आपकी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री, इफ़ यू आर मैनेजिंग एन इन्वेंट्री और उस इन्वेंट्री से आप अपनी कंपनी के ऑपरेशंस चला रहे हो, तो आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है या who are more critical to the functioning of your company, और trivial parts पे आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना. अब बात ये आ जाती है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि जी ये पार्ट क्रिटिकल है और ये पार्ट क्रिटिकल नहीं है. तो यहाँ ABC एनालिसिस जो है हमें बताता है कि जी यू हैव टू यूज़ एनुअल डॉलर वॉल्यूम एज अ क्राइटेरिया to classify the different items in the inventory. आप क्लास ए उनको कह दें जिनका हाई एनुअल डॉलर वॉल्यूम है, जिनका एक साल के अंदर या वॉट एवर दी क्वार्टर, ईयर, हाफ एन ईयर, जो भी आपकी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डॉलर वॉल्यूम है, तो आप उन्हें क्लास कर दें, क्लास ए दे दें. जिनका मीडियम वॉल्यूम है एनुअल डॉलर वॉल्यूम उसको आप क्लास बी कर दें, और जिनकी लो एनुअल डॉलर वॉल्यूम है उनको आप क्लास सी कर दें. ABC एनालिसिस का बेसिक मकसद ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स एंड नॉट दी मैनी ट्रिवियल वंस. अब ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी आपके पास कुछ स्टॉक आइटम्स हैं जिनकी कैटेगराइजेशन दी हुई है इधर से कि जी ये आइटम आपने स्टॉक किए हुए हैं. आप इनकी परसेंटेज स्टॉक, कितना परसेंट स्टॉक में है, उनका एनुअल वॉल्यूम कितना है कि जी आप साल के अंदर कितना यूज़ करते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है पर यूनिट आइटम. तो ज़ाहिरी बात है जब साल में जितना यूज़ करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट आपके पास है तो आपके पास एनुअल डॉलर वॉल्यूम भी आ जाएगा. ठीक है, और फिर आपने परसेंटेज एनुअल वॉल्यूम देख लेना है कि जी टोटल आइटम्स जो आपने स्टोर किए हुए हैं उनका कितना एडअप होता है और इस जो पर्टिकुलर आइटम है इसका कितना ये टोटल का कितना परसेंट है. तो वो हमें पता चल गया कि टोटल का 38.8% है. इसी तरह एक और आइटम है जिसकी एनुअल यूजेज इतनी है, यूनिट कॉस्ट उसकी इतनी है, एनुअल डॉलर वॉल्यूम उसकी इतनी है और परसेंटेज एनुअल डॉलर वॉल्यूम इतनी है. तो ये आपको पता चल गया कि जी ये जो दो आइटम है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स, दे आर हाई
they have high percentage of annual dollar volume, तो these are critical items, इनको आपने क्लास A में डाल दिया। इसी तरह से और आइटम्स जो है स्टोर हुए हुए इन्वेंट्री के अंदर, उनका एनुअल परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर वॉल्यूम निकाल के आपने देखा कि जी दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट। इसी तरह और आइटम्स जो हैं उनकी कॉस्ट निकाल के देख लिया कि जी दीज आर कंपैरेटिवली ग्रेड सी आर्टिकल्स या ग्रेड सी आइटम्स। अब ये मैं आपको बता रहा था ना कि जी आपकी जो टोटल एनुअल वॉल्यूम है उससे जब आप डिवाइड करेंगे, अब आपने ये वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसके लिए भी यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, ये सारी की सारी इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि जी एनुअल डॉलर वॉल्यूम तो इतना है जो सारे आइटम्स की वॉल्यूम्स डॉलर वॉल्यूम को मिला के आपके पास एक एनुअल वैल्यू आ गई। आपने परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर वॉल्यूम निकालना है तो वो आपके पास, इसको जब आप डिवाइड करोगे इंडिविजुअल आइटम्स के डॉलर वॉल्यूम से बाय द एग्रीगेट डॉलर वॉल्यूम, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेसिकली आप देखें अब परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री आइटम, परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर यूजेज, तो क्लास ए आइटम जो है दे आर यूजिंग द मोस्ट डॉलर अमाउंट एनुअली। क्लास बी जो है वो कंपैरेटिवली कम कर रहा है और क्लास सी सबसे कम कर रहा है। अब हमें पता चल गया है कि जी कौन से क्रिटिकल आइटम्स हैं, कौन से ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी कैटेगरी के हैं, कौन से सी कैटेगरी के हैं। तो अब हम कौन सी पॉलिसीज बना सकते हैं या कौन सी अपने सप्लायर्स के साथ इंटरेक्शन, किस सप्लायर को का इंटरेक्शन अपने साथ बेहतर कर सकते हैं कि जी कि हमारा जो कंपनी है उसके ऑपरेशंस अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से चलते रहें। तो ABC एनालिसिस से हमें पता चलता है कि जी A आर्टिकल्स ये हैं, B क्लास आर्टिकल्स ये हैं, C क्लास आर्टिकल्स ये हैं। तो अब आप पॉलिसीज कैसी बना सकते हैं? पॉलिसीज कैन इंक्लूड एम्फेसिस ऑन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर आइटम A, कि जी आप अपने ए आइटम, ए क्लास आइटम्स जो है आपकी इन्वेंट्री में, उसके सप्लायर्स के साथ अपने रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर डेवलप कर सकते हैं, उनके साथ अपनी जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट या फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा अच्छी प्राइस पे उनसे रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीज आर द क्रिटिकल आइटम्स इन योर इन्वेंट्री। टाइटर फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर ए क्लास आइटम्स। अब ज़ाहिरी बात है कि जी ए क्लास आइटम्स दे हैव हायर डॉलर वॉल्यूम्स, उनकी मिसमैनेजमेंट से आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा आपने फिज़िकल इन्वेंट्री कंट्रोल ज़्यादा बेहतर रखना है, उनकी कैटेगराइजेशन अप टू डेट रखनी है, उनकी इन्वेंट्री के अंदर वो कितने पड़े हुए जो उनका आपने अकाउंट रखना है कि जी इन्वेंट्री में एक्चुअल अमाउंट कितनी है वो ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा टाइटर रखनी है। और उसके बारे में, और जो टाइप ए आइटम्स हैं, कैटेगरी ए आइटम्स हैं, उनकी फोरकास्टिंग भी ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगानी है उनकी फोरकास्टिंग के लिए। तो अब हमें ABC एनालिसिस से क्या ओवरऑल पता चल गया कि जी आपके ए कैटेगरी आइटम्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी आइटम्स कौन से हैं, बी कैटेगरी कौन से हैं, सी कैटेगरी कौन से हैं। और फिर आपने जब आपको पता चल गया कि हमारी इन्वेंट्री में ABC कैटेगरीज ये हैं, फिर उसके बाद आपने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जी इस सप्लायर से अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, इन प्रोडक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग एफर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये सारी की सारी हमें ABC एनालिसिस से इंफॉर्मेशन मिलती है। ABC एनालिसिस कहती है कि जी आपने एनुअल डॉलर वॉल्यूम जो है उस पे कंसंट्रेट करना है किसी भी प्रोडक्ट का, और जितना ज़्यादा जिस इन्वेंट्री प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा एनुअल डॉलर वॉल्यूम है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने उसको देनी है। रिकॉर्ड एक्यूरेसी क्या होती है? अब हमने देख लिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर तीन चार टॉपिक्स थे। फर्स्ट वाज ABC analysis, and then we are going to now discuss record accuracy, cycle counting and
control of service inventories. We will be progressively discussing these topics in this lecture. So let's see what is record accuracy. Accurate records are critical ingredient in production and inventory systems, allows organizations to focus on what is needed, necessary to keep precise decision about ordering, scheduling and shipping. Incoming and outgoing record keeping must be accurate. Stock rooms should be secure. अब रिकॉर्ड एक्यूरेसी क्या है कि जी ये तो आपकी एक इन्वेंट्री आ गई, इस इन्वेंट्री के अंदर आपने चीजों को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसका जो रिकॉर्ड है कि जी कितनी चीज, क्या कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज पड़ी हुई है, उसको उस रिकॉर्ड की जो एक्यूरेसी है दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. सो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आर क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन इन्वेंट्री सिस्टम्स. अब आपके पास इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं जो प्रोडक्शन सिस्टम्स के आपका एक प्रोडक्शन सिस्टम होता है, उसके पीछे ही एक इन्वेंट्री सिस्टम होता है जो उस प्रोडक्शन सिस्टम को मेंटेन कर रहा होता है, उसको इनपुट दे रहा होता है. इसी तरह अगर आपके पास वेयर हाउस है तो दैट इज एन इन्वेंट्री सिस्टम जो किसी और के लिए इन्वेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर ऑल द आइटम्स दैट आर इन योर प्रोडक्शन और इन्वेंट्री सिस्टम्स. इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशंस टू फोकस ऑन व्हाट इज नीडेड. आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कम है. अगर आपका रिकॉर्ड अप टू डेट है, एक्यूरेट है, तो इट विल गिव यू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नेसेसरी टू मेक प्रिसाइज डिसीजन अबाउट ऑर्डरिंग. अगर आपका रिकॉर्ड एक्यूरेट है तो आपको डिसीजन अबाउट ऑर्डरिंग, स्केड्यूलिंग एंड शिपिंग कि जी कितना ऑर्डर करना है, कब तक इसको रिसीव करना है, किस डेट तक इसको भेजना है इन्वेंट्री से, ये सारे के सारे डिसीजन आपके बेहतर हो जाएंगे, ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे. इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट बी एक्यूरेट कि जी जितनी चीज़ें अंदर आ रही हैं इन्वेंट्री की और जितनी चीज़ें इन्वेंट्री से बाहर जा रही हैं, तो ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक इन्वेंट्री की रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है. स्टॉक रूम्स शुड बी सिक्योर. अब जाहिर बात है जहां आप इन्वेंट्री को स्टॉक कर रहे हो दे शुड बी सिक्योर. ठीक है. अगला टॉपिक जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर के जी साइकिल काउंटिंग. साइकिल काउंटिंग होती क्या है? साइकिल काउंटिंग बेसिकली अब आपके पास इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, उसमें हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है. अब आप रोज़ तो उठ के उन हज़ारों चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते ना कि जी आज एक बंदा लगाया वो सारी चीज़ों को जाके देख के आएगा कि जी ये चीज़ है कि नहीं है, ये कैटेगरी ए की चीज़ें हैं, बी की हैं, सी की नहीं. सारी तो रोज़ की रोज़ चेक नहीं की जा सकती. और सारी चीज़ों को अगर आप चेक करना चाहोगे तो आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जो सुबह उठेंगे, सुबह काम पे आएंगे, 3-4 घंटे तक सारी इन्वेंट्री की ही काउंट करते रहेंगे. तो हमें एक प्रोसीजर चाहिए, एक तरीका चाहिए जिससे हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड भी एक्यूरेट रख सकें और हमारा ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स या ज़्यादा टाइम भी ना खर्च हो. तो वो क्या तरीका है, उसको कहते हैं साइकिल काउंटिंग. ये एक प्रोसीजर है जिससे आप इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन को अपडेट करते जाते हो. अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, आपका रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत सारे लोग ह्यूमन रिसोर्स नहीं इन्वेंट्री के रिकॉर्ड कीपिंग पे आप लगाना चाहते, तो थोड़े मॉडरेट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से आपकी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड एक्यूरेटली कीप किया जा सकता है. और वो जो टेक्निक है उसको साइकिल काउंटिंग कहा जाता है. लेट्स डिस्कस व्हाट इज साइकिल काउंटिंग. आइटम्स आर काउंटेड एंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस कि जी पीरियोडिकली हर दिन, हर वीक, जितना आपका टाइम है, जितना आपकी साइकिल है, ऑपरेशन साइकिल, उसके हिसाब से वो पीरियोडिकली रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है और काउंट किया जाता है. ऑफन यूज्ड एज एबीसी एनालिसिस टू डिटरमिन साइकिल. ऑफन यूज्ड विद एबीसी एनालिसिस टू डिटरमिन साइकिल्स. अब एबीसी एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि जी टाइप ए कैटेगरी ए आइटम्स कौन सी है, कैटेगरी बी इंपॉर्टेंट आइटम्स कौन सी हैं, मीडियम इंपॉर्टेंट आइटम कौन सी हैं एंड लो इंपॉर्टेंस आइटम्स कौन सी हैं. तो जब आपको एबीसी एनालिसिस आपने कर लिया इन्वेंट्री का, फिर उसके बाद आप साइकिल काउंटिंग करते हो. साइकिल काउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? इट एलिमिनेट्स शटडाउन्स एंड इंटरप्शंस कि जी आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करता, उसको शट डाउन नहीं करता. अगर आप प्रॉपरली साइकिल काउंटिंग कर रहे हो तो आपके पास एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है इन्वेंट्री की.
एलिमिनेट्स एनुअल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स, आपको इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की कब ज़रूरत पड़ती है कि जी आपकी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अप टू डेट है नहीं और एकदम से आपको पता चला कि जी हमारी इन्वेंट्री बहुत लो हो गई है, तो फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ज़्यादा ऑर्डर मंगवाना पड़ता है। जाहिर बात है, रूटीन से ज़्यादा ऑर्डर मंगवाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो उससे आपको एलिमिनेशन या ये जो साइकिल काउंटिंग है उससे आपको निजात देती है, उससे आपको प्रोटेक्शन देती है। अलाउज कॉजेज ऑफ एरर्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। अब इसके अंदर कोई इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के अंदर कोई एरर्स हैं, कोई इनएफिशिएंसीज हैं, उनको भी साइकिल काउंटिंग ख़त्म करती है। एंड इट मेंटेन्स एन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। जाहिर बात है, साइकिल काउंटिंग का बेसिक मकसद ही है कि जी आपका जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है उसको एक्यूरेट रखे। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं साइकिल काउंटिंग के इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, देखते हैं कि जी साइकिल काउंटिंग होती क्या। अभी तो मैंने आपको थ्योरी बता दी कि जी ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये एबीसी के साथ यूज़ होता है, एबीसी एनालिसिस के साथ। नाउ लेट्स सी कि जी साइकिल काउंटिंग की एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जी साइकिल काउंटिंग होती क्या है और क्यों ये आसान है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स फॉर मेंटेनिंग एन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अब आपके पास 5000 आइटम्स हैं इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। उसके अंदर 500 आइटम्स जो है वो ए कैटेगरी आइटम्स हैं, 1750 आइटम्स जो है वो बी कैटेगरी आइटम्स हैं एंड 2750 आर सी कैटेगरी आइटम्स। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं रिकॉर्ड अपडेट करने के, ठीक है। एक तरीका यह है कि जी आप 5 बंदों को या 6 बंदों को या 10 बंदों को कहो कि जी तुमने रोज सुबह आके इन चीज़ों को चेक करना है। तुम्हारा काम है कि तुमने 1000 चीज़ें देखनी है, उनका रिकॉर्ड चेक करना है। तुम 5 बंदे हायर कर लें और उनसे कहें कि तुमने सुबह आना है और इन 1000 चीज़ों को देखना है कि जी कितनी चीज़ें हैं हमारे पास इन्वेंट्री में, तुमने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। या आपके पास दूसरा तरीका यह है कि आप साइकिल काउंटिंग यूज़ करें, तो इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स कम इस्तेमाल होंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट अप्रोच, जिसके अंदर आप एक डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हो और उनसे कहते हो कि तुम्हारा काम ही है कि तुम हर वक्त इन्वेंट्री को अपडेट करो, देखो इन्वेंट्री में जाके कितना माल पड़ा हुआ है और उसका रिकॉर्ड अपडेट करो। अब इसके अंदर पॉलिसी हम साइकिल काउंटिंग बना रहे हैं, साइकिल काउंटिंग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें पता चल गया एबीसी आइटम्स कौन से हैं, ये तो हमने एबीसी एनालिसिस से कर लिया। अब हमने एक पॉलिसी बनानी है कि जी हमें पता होना चाहिए कि जी हर 20 दिन बाद जो आइटम ए है उसका क्या अपडेट है, हमें पता होना चाहिए कि जी हर 60 दिन बाद आइटम बी का क्या अपडेट है और हर 6 महीने बाद आइटम सी का क्या अपडेट है, ठीक है। तो 120 डेज के बाद आपको आइटम सी का अपडेट पता होना चाहिए, 60 डेज बाद 2 महीने बाद ऑलमोस्ट आपको आइटम बी का अपडेट होना चाहिए और 20 डेज के बाद आपको आइटम ए का अपडेट होना चाहिए। अब ये क्या बात है कि जी क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये जो पॉलिसी है ये हर कंपनी की डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन कि जी कितना थ्रूपुट उस कंपनी से निकल रहा है, जितना ज़्यादा मटेरियल वो बना रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसी ऑफ काउंटिंग आइटम्स चेंजेस, ठीक है। बास कंपनी की ज़्यादा थ्रूपुट है तो वो चाहते हैं कि जी हमें इन्वेंट्री अपडेट हर वीक में मिले या हर 2 वीक्स के अंदर मिल जाए। तो इट डिपेंड्स कि जी कंपनी कितनी तेज़ी से काम कर रही है, कंपनी की इन्वेंट्री कितनी है, उसने कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखी हुई है। मगर इस स्पेसिफिक केस के अंदर उनके पास 5000 आइटम्स हैं और उसके अंदर 500 आइटम्स कैटेगरी ए के हैं, 1750 आइटम्स कैटेगरी बी के हैं और 2750 आइटम्स कैटेगरी सी के हैं, ठीक है। और इनकी ये पॉलिसी है कि हमें पता होना चाहिए हर 20 दिन बाद कि हमारी जो कैटेगरी ए है उसकी क्या अपडेट है, हर 60 दिन बाद हमें पता होना चाहिए कि जी बी आइटम्स की क्या अपडेट है और सी आइटम्स की क्या अपडेट है, वो हमें हर 120 डेज बाद पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने आइटम्स की कैटेगरीज बता दी, क्वांटिटीज आपको पता है कि जी कितनी है और आपने एक पॉलिसी बना दी है कि जी हर महीने हमें पता होना चाहिए आइटम ए की, बी के लिए आपको हर क्वार्टर में पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट 2 months, ऑलमोस्ट 3 months, और सी आइटम्स के लिए
हर 6 महीने बाद पता होना चाहिए। तो आपने सीधा सीधा बता दिया कि जी 500 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 डेज बाद आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जी 25 items per day of category A, 29 items per day of category B and 23 items of category C। टोटल ये बन जाते हैं 77 आइटम्स पर डे। तो अब आपने ये पॉलिसी, साइकिल काउंटिंग की पॉलिसी बना ली ना। अब आपने एक बंदे को कहना है कि तुमने सुबह उठ के पहले 25 आइटम्स को अपडेट करना है जो कैटेगरी ए के हैं, 29 आइटम्स को अपडेट करना है या उनको चेक करना है कि जी कितने आइटम्स हैं, उनको तुमने कैटेगरी बी की आइटम्स को काउंट करना है। कैटेगरी सी की जो आइटम्स हैं वो 23 आइटम्स को तुमने हर रोज चेक करना है। जब वो हर रोज डिस्टिंक्ट इन आइटम्स को चेक करेगा ना, जाहिर बात है पहले दिन वो उठेगा, पहले 25 चीजें या 25 आइटम्स ए को चेक करेगा, अगले दिन वो अगले 25 आइटम्स ए को चेक करेगा। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर रोज उसको 77 आइटम्स चेक करने पड़ेंगे, इन विच ही हैज टू चेक 25 आइटम्स ऑफ कैटेगरी ए, 29 आइटम्स ऑफ कैटेगरी बी एंड 23 आइटम्स फॉर कैटेगरी सी, जिसकी वजह से 20 दिनों में आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कैटेगरी ए का। 29 जो कैटेगरी बी है उसमें 60 डेज के अंदर आपके पास पूरा पिक्चर होगी कैटेगरी बी की, और इसी तरीके से 120 डेज के अंदर आपके पास पूरी पिक्चर होगी कैटेगरी सी की। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, काम सब्सटेंशियली कम हो गया। उस हर एक बंदे ने रोज 77 चीजें चेक करनी है और रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो आपके पास इन्वेंट्री की साइकिल काउंटिंग आप कर रहे हो, और आपकी वो जो पॉलिसी है कि जी हमें हर महीने पता होना चाहिए, हर क्वार्टर में पता होना चाहिए, हर 6 महीने बाद पता होना चाहिए अपडेट आइटम्स का, वो ऑटोमेटिकली आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब सर्विस इन्वेंट्रीज के कंट्रोल के अंदर क्या किया जाता है, सर्विस इन्वेंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। आपकी स्लाइड के अंदर एक फार्मेसी की एग्जांपल है कि जी फार्मेसी के अंदर डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो स्टोर हुई हुई हैं। इसी तरह से और सर्विस इंडस्ट्रीज आपके पास आती हैं, रेस्टोरेंट्स की उधर स्टोरेज हुई हुई होती है, रॉ मटेरियल्स की या कुकिंग मटेरियल्स की, एग्स, ब्रेड, ऑयल, शुगर, इस तरह की चीज़ों की। इसी तरह रिटेल स्टोर्स के अंदर जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं उनकी स्टोरेज वो भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। जो पार्किंग लॉट्स होते हैं उसके अंदर क्या इन्वेंट्री होती है, पार्किंग लॉट्स के अंदर इन्वेंट्री पार्किंग स्पेस होती है। बसेस की क्या इन्वेंट्री होती है, बसेस की सीट्स होती हैं। जहाज़ों की कैपेसिटी एट दैट टाइम कि जी ऑन 25 दिसंबर फ्रॉम 3 to 6 इस जहाज़ की ये कैपेसिटी हमारे पास या ये इन्वेंट्री मौजूद है। 6 के बाद 3 to 6 वो इन्वेंट्री पेरिशेबल इन्वेंट्री है ना, क्योंकि अगर किसी ने यूज़ नहीं की 3 से 6 तक तो फिर वो अगली साइकिल के अंदर 6 to 9 वाली साइकिल में यूज होगी, 3 to 6 वाली इन्वेंट्री तो लूज हो गई। तो सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं। होटल्स की इन्वेंट्रीज होती हैं, जो उनके रूम्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये सारी की सारी सर्विस सेक्टर्स के अंदर इन्वेंट्रीज आ जाती हैं। अब इन्वेंट्रीज का कंट्रोल सर्विस सेक्टर्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेंट्रीज का कंट्रोल नहीं रखोगे या उनका एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा जाके आपको हिट करता है। लॉसेस कैन कम फ्रॉम श्रिंकेज और पिल्फरेज। अब सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लॉसेस होते हैं। या एक तो लॉस है कि जी अगर आपने रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं रखा तो यू आर नॉट यूजिंग योर कैपेसिटी एफिशिएंटली। एक और मसला ये होता है कि जी श्रिंकेज और पिल्फरेज। श्रिंकेज ये होती है कि जी आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है मगर आपके रिकॉर्ड के अंदर वो नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो श्रिंकेज हो गई है कि जी एक्चुअली प्रोडक्ट गोदाम में पड़ी हुई है मगर आपका रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा कि जी वो हमारे पास गोदाम में पड़ी हुई है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जी आप अपना रिकॉर्ड का जो अपडेट है एक्यूरेट रिकॉर्ड रखो, वरना तो श्रिंकेज हो जाती है आपकी इन्वेंट्रीज के अंदर। पिल्फरेज ये होती है कि जी रिकॉर्ड तो शो कर रहा है कि गोदाम में चीज पड़ी हुई है मगर किसी ने चोरी कर लिया आपके गोदाम से या वो खराब हो गई है, तो वो पिल्फरेज बन जा वो चीज पिल्फरेज के अंदर आ जाती है कि जी रिकॉर्ड के अंदर था कि हमारे पास
200 किलो चावल पड़ा हुआ है, मगर किसी ने 2-2.5 केजी उससे निकाल लिया चावल को, या ख़राब हो गया या कुछ भी उसको हुआ, तो वो क्या हुआ, पिलफरेज, ख़राबी उसके अंदर आ गई, नुकसान हो गया। फिर इसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वेंट्री कीप करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले सर्विस सेक्टर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी गुड पर्सनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। पर्सनल जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे ऑनेस्ट लोगों को हायर करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको अच्छा डिसिप्लिन, उनकी एक्टिविटीज़ जो है उनको डिसिप्लिन रखें। और टेक्निक्स क्या है? यू हैव टू टाइटली कंट्रोल द इनकमिंग शिपमेंट, कि जी जो इनकमिंग आपके गोदाम में चीज़ या इन्वेंट्री में जो चीज़ आ रही है, ये आपकी इन्वेंट्री है ना। इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है? इन्वेंट्री के अंदर इनकमिंग शिपमेंट्स होती हैं और इन्वेंट्री से आउटगोइंग शिपमेंट्स होती हैं, और तो इन्वेंट्री के अंदर स्टोरेज हो रही होती है ना। तो इनकमिंग शिपमेंट्स जो होती हैं उनको आपने टाइटली कंट्रोल मॉनिटर करना होता है कि जी क्या चीज़ अंदर आ रही है। ये जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, इनका जो कंबाइंड होता है आउटपुट, वो आपके पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है। तो ये आपको देखना पड़ता है कि जी इन्वेंट्री में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। तो यू हैव टू हैव अ टाइट कंट्रोल ऑन इनकमिंग शिपमेंट्स एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ऑल गुड्स लीविंग द फैसिलिटीज़। वही बात कि जी जो अंदर आ रही है और जो बाहर जा रही है इन्वेंट्री से, उसका एक इफेक्टिव आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विस के अंदर भी यही बेसिक आइडियाज़ हैं कि जी इनकमिंग इन्वेंट्री जो है, जो इन्वेंट्री अब होटल के केस में इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह हो सकती है? आपका रिकॉर्ड इफेक्टिवली मैनेज होना चाहिए कि जी ये कमरा फारिग हुआ है इस टाइम पे, तो एक रिकॉर्ड अपडेट होगा। अब अगला कोई आपका कस्टमर आएगा कि जी मुझे कमरा चाहिए, तो आपको फौरन पता चल जाएगा यार ये वाला कमरा खाली है। अगर आपका रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होगा, उसके अंदर कोई श्रिंकेज आ गई है, तो यू कैन नॉट यूज दैट यूटिलिटी, क्योंकि आपका कमरा तो फारिग है मगर आपका रिकॉर्ड नहीं बता रहा कि यार ये कमरा फारिग हो गया। तो effective record keeping is very important in service inventories as well. Now let's discuss what is independent versus dependent demand. ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था कि जी dependent demand ये होती है, independent demand ये होती है, मगर let's have some formal discussion about कि जी what is independent and dependent demand. Independent demand, the demand for item is independent of the demand of any other items in the inventory. यानी कि independent demand के अंदर क्या होता है कि जी अगर एक चीज़ की डिमांड आ रही आपके पास इन्वेंट्री में, लेट्स से कि जी दो तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक तरह की चीज़ जो आपने दो ही तरह की चीज़ें स्टोर की हैं, एक तरह की चीज़ें हैं खाने पीने की ईटेबल्स हैं और दूसरे आपके कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स की डिमांड बढ़ने से खाने पीनों की डिमांड की चीज़ों पे डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट डिमांड है। मगर लेट्स से कि जी आपने अपनी इन्वेंट्री के अंदर एक टी स्टोर की हुई है और बिस्किट स्टोर की हैं। टी की डिमांड के बढ़ने से आपके बिस्किट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये डिपेंडेंट डिमांड होती है। यानी कि द डिमांड फॉर आइटम्स इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड फॉर सम अदर आइटम्स इन द इन्वेंट्री, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये होती है कि जी आपकी इन्वेंट्री के अंदर कुछ दो तीन चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं, अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी डिमांड ऑफ अदर आइटम्स इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, एक गोदाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, चावल, दूध, अंडे, दही, ये सारी की सारी चीज़ें आप एक गोदाम के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब अगर वो गोदाम ऐसा है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट डिमांड आ रही है, यानी कि एक चीज़ की डिमांड बढ़ने से दूसरी चीज़ों की डिमांड में कमी या ज़्यादती नहीं हो रही, तो इट्स एन इंडिपेंडेंट डिमांड। अगर एक चीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ों की डिमांड में कमी या ज़्यादती हो रही है, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिपेंडेंट डिमांड। और इन्वेंट्री की कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? एक तो पहला कॉन्सेप्ट हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो हमने पढ़ लिया ना कि जी ABC एनालिसिस क्या होता है, और इसके अलावा हमने देखा कि जी साइकिल काउंटिंग क्या होती है, साइकिल काउंटिंग किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हमने द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग हमने देख ली कि जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हमने सर्विसेज के अंदर देख लिया कि जी इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, उनके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं।
अब अब हम इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि जी इन्वेंट्री में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डिमांड होती क्या है। अब हम देखते हैं कि जी इन्वेंट्री की कॉस्ट्स क्या क्या है। इन्वेंट्री की बेसिक कॉस्ट जो होती हैं वो होल्डिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और सेटअप कॉस्ट होती है। होल्डिंग कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और कैरिंग आइटम्स ओवर टाइम, कैरिंग इन्वेंट्री ओवर टाइम्स। यानी कि होल्डिंग कॉस्ट ये है कि जी आपने कोई चीज़ अपनी इन्वेंट्री में रख ली, उस इन्वेंट्री में उस चीज़ को रखने के कितने पैसे लगे। अब आपके पास अगर एक गोदाम है, ठीक है, उस गोदाम में आपने कोई खाने की चीज़ स्टोर की हुई है, उस खाने की स्टोरेज के लिए आपको उस गोदाम की सफाई करानी पड़ेगी। उसके बाद उस गोदाम के अंदर स्पेशल इक्विपमेंट रखवानी पड़ेगी कि जी खाने की जो चीज़ें वो स्टोर हो जाएं, इजीली स्टोर हो जाएं, इफ़ेक्टिव तरीके से स्टोर हो। उसमें आपको वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उस वेंटिलेशन के इंतज़ाम के लिए आपके कुछ पैसे लगेंगे, कुछ आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट लगेगी। उसमें कोई बिजली होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बल्ब लगाओगे, उसके अंदर कोई इक्विपमेंट लगाओगे कि जी आपकी जो चीज़ आप स्टोर कर रहे हो वो इफेक्टिवली स्टोर हो जाए। तो ये सारे की सारी क्या है? ये कॉस्ट है ना, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही हैं उस गोदाम को मेंटेन करने के लिए। तो एक आइटम, फिर आपने अगर एक आइटम एक साल तक उस इन्वेंट्री में रखा है तो आपकी कितनी कॉस्ट आई है, उसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स। अब आपने होल्डिंग कॉस्ट तो हमने देख ली ना कि जी किसी भी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए क्या कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट के अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हो गई कि जी अब आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है एंड रिसीव किया आइटम्स को, ठीक है, कि जी ऑर्डर करने के लिए आपने किसी कोई टेंडर भेजा है, टेंडर के लिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट की है, उससे आपके पास रिस्पॉन्सेज आए हैं कि जी हाँ हम आपको ये चीज़ देते हैं। और ये सारी की सारी क्या है? ये प्रोसेसिंग फीस है ना। आपने कहीं एडवर्टीजमेंट की है डिमांड के लिए, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है, जिस बंदे को हायर किया है, ये सारी कॉरिस्पॉन्डेंस करने के लिए, ऑर्डर वापस आया या जो सारा प्रोसेस हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए बैंक से इन्वॉल्व हुए कि जी आपने किसी बैंक में कोई पैसे भेजे, उधर से फिर आपके सप्लायर ने आपको चीज़ वापस भेजी। तो ये सारी की सारी क्या है? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। सेटअप कॉस्ट क्या है? कॉस्ट टू प्रिपेयर अ मशीन और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन ऑर्डर। अब सेटअप कॉस्ट ये होती है कि जी एक तो होल्डिंग कॉस्ट हो गई और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। सेटअप कॉस्ट ये होती है कि जी अब आपके गोदाम में आ गई है इन्वेंट्री, अब उस इन्वेंट्री से आपने प्रोडक्शन करनी है, तो उसके अंदर मशीनों को प्रिपेयर करना है आपने, या प्रोसेस को प्रिपेयर करना है एक ख़ास तरह के ऑर्डर बनाने का। यानी कि आपकी फैक्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के जूते बनते हैं, डिफरेंट तरह के फुटबॉल बनते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ है गोदाम में, मगर अब आपने पहले उससे काले रंग के जूते बनाने हैं, तो आप प्रोसेस को क्या करोगे? ब्लैक लेदर के लिए पूरी मशीनरी को या प्रोसेस को एडजस्ट करोगे। तो ये जो सेटअप क्या है? ये सेटअप टाइम है या सेटअप कॉस्ट है। मैंने आपको इनिशियल स्लाइड्स के अंदर एक एग्जांपल छोटी सी दिखाई थी, जिसके अंदर आपके पास लकड़ी थी, लकड़ी को स्टोर किया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, फिर मशीन को सेटअप किया जा रहा था काटने के लिए, और फिर उससे एक्चुअल कटाई की गई थी। तो वो जो एक्चुअल सेटअप हो रहा था ना, तो वो सेटअप कॉस्ट के अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जी कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं फॉर इंडिपेंडेंट डिमांड। हमने डिस्कस कर लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आपके पास होल्डिंग कॉस्ट क्या है इन्वेंट्री की, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है इन्वेंट्री की, और सेटअप कॉस्ट आपके पास आती हैं इन्वेंट्री से चीज़ निकाल के प्रोसेस से गुजारनी है। तो वो जो प्रोसेस को सेटअप करना है वो भी तो कॉस्ट ही है ना। तो इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग का जो इंटरेक्शन है उसकी भी कॉस्ट हमने कंसिडर कर लिया, और बेसिक इन्वेंट्री की भी कॉस्ट कंसिडर कर रही है। ये तो आपके पास प्योरली इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना, कि जी आपने एक चीज़ को स्टोर किया तो उसकी कितनी कॉस्ट है, ऑर्डर किया आपने किसी सप्लायर से ऑर्डर रिसीव किया या ऑर्डर दिया तो उसकी कितनी कॉस्ट है। अब ये जो सेटअप कॉस्ट है ये इन्वेंट्री
इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के इंटरेक्शन पे कॉस्ट आ रही है ना, कि इन्वेंट्री से कोई चीज़ निकाल के अब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारनी है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सेटअप करना है। तो हमने सारी तरह की कॉस्ट देख ली इन्वेंट्री से रिलेटेड। जी सप्लायर और इन्वेंट्री के दरमियान में क्या कॉस्ट थी, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी। इन्वेंट्री के अपनी अंदर क्या कॉस्ट थी, वो होल्डिंग कॉस्ट थी। इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग के इंटरेक्शन पे क्या कॉस्ट थी, वो सेटअप कॉस्ट थी। इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होती है, डिपेंडेंट डिमांड भी देख ली हमने। अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनसे हम इंडिपेंडेंट डिमांड हो हमारे पास, यानी कि हमारी एक चीज इन्वेंट्री के अंदर एक चीज़ की डिमांड बढ़े तो दूसरी चीज़ की डिमांड उससे अफेक्ट नहीं होती। तो हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको EOQ कहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। इसके अंदर क्या है कि जी बेसिक आपने देखना होता है कि जी आपकी इतनी कॉस्ट है तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमम साइज फॉर ऑर्डरिंग, ठीक है, वो क्या है। और इसके अंदर ये है कि जी अगर आपका सप्लायर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा हो कि तुम मुझसे 500 चीजें खरीदोगे तो इस प्राइस पे दूंगा, 1000 चीजें खरीदोगे तो उससे जरा कम प्राइस पे लूंगा, 2000 चीजें खरीदोगे तो और कम प्राइस पे दूंगा। तो ये क्या क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है कि जी जब आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है तो कितना खरीदें हम, ठीक है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक EOQ मॉडल या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ये इंडिपेंडेंट डिमांड के केस के अंदर हम यूज करते हैं, नॉट ऑन डिपेंडेंट डिमांड। इस केस के अंदर इस चैप्टर के अंदर सारी इंडिपेंडेंट डिमांड के मॉडल्स हैं। चैप्टर 14 के अंदर आपके पास डिपेंडेंट डिमांड के इन्वेंट्री मॉडल्स हैं। इंपॉर्टेंट अजम्पशंस क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के, कि जी डिमांड इज नोन, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। किसी भी चीज की जो डिमांड है दैट इज नोन एंड इट इज कांस्टेंट, आपको पता है कितनी डिमांड है और उसके अंदर कांस्टेंट वेरिएशन आ रही है, फोरकास्ट आप उसको इजीली कर सकते हो, और वो इंडिपेंडेंट है, किसी और चीज से पे डिपेंड नहीं कर रही आपकी इन्वेंट्री के अंदर। लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। लीड टाइम क्या होता है कि जी आपने ऑर्डर किया अपने सप्लायर को, ठीक है, और आपके सप्लायर ने वो चीज आपको पहुंचाई, तो ये जो सारा टाइम है ना कि जी इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, ये क्या है, ये लीड टाइम है कि जी आपने सप्लायर को ऑर्डर किया, उसमें 2 दिन लगे और आपके सप्लायर ने आपको ऑर्डर सेटिस्फाई करने में 2 दिन लगाए, तो आपका पूरा जो लीड टाइम है दैट इज 4 डेज, कि जिस दिन आपने ऑर्डर किया और जिस दिन आपके पास चीज पहुंची दैट इज द लीड टाइम। रिसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट। अब तीसरी अजम्पशन ये ले रहा है कि जो आपने ऑर्डर किया वो ऑर्डर आपको पूरा मिला और एक दफा में मिला, कि आपने 400 चीजों की डिमांड की, 400 चीजें आपको लीड टाइम खत्म होने के बाद 400 की 400 चीजें आपको मिल गई। ये नहीं कि जी आपके सप्लायर ने 200 चीजें आज भिजवा दी और 200 चीजें कल भिजवा दी, नहीं, उसने 400 चीजें एक साथ आपको भिजवाई हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अवेलेबल। अब इसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा सप्लायर की तरफ से। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट। इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो उसकी होल्डिंग कॉस्ट है और सेटअप कॉस्ट है, ठीक है। स्टॉक आउट आर कंप्लीटली अवॉइडेबल। अब आपके पास अजम्पशन ये हो रही है कि जी जब आप अपने सप्लायर को ऑर्डर दोगे तो वो पूरा ऑर्डर टाइम पे आपको पहुंचाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से ऑर्डर करोगे तो आपको प्रॉपर वक्त पे चीज पहुंच जाएगी और स्टॉक आउट आपका नहीं होगा। यानी कि स्टॉक आउट का मतलब होता है कि जी डिमांड आपके गोदाम में चीज ही खत्म हो गई है, अब कोई नई डिमांड आती है कस्टमर की तरफ से तो आप पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टॉक जो है वो आउट हो गया, खत्म हो गया। तो बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अगर आपने यूज करना है तो ये सारी की सारी अजम्पशंस सिस्टम के अंदर पूरी होनी चाहिए कि जी आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई सीजनैलिटी या कोई वेरिएशन नहीं आ रही, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ ट्रेंड, आपको कांस्टेंट पता है।
लीड टाइम भी आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा, आपको पता है कि मैं 2 दिन में ऑर्डर दूंगा और 2 दिन में वो ऑर्डर पहुंच जाएगा, तो दैट इज जो 4 दिन है वो लीड टाइम है। आपके पास जब माल आएगा वो इंस्टेंटेनियस होगा कि जितना आपने ऑर्डर किया है उतने का पूरा माल आपको उस टाइम पे एक वक्त में मिल जाएगा। इस तरह छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलता। सप्लायर से जितनी क्वांटिटी की भी चीज मंगवाओ वो उतनी ही प्राइस की देगा पर यूनिट प्राइस के जी। अगर तुमने 200 चीजें मंगवानी है तो $5 पर यूनिट मिलेगा। अगर 300 चीजें मंगवानी है फिर भी $5 पर यूनिट मिलेगा। 400 चीजें मंगवानी है फिर भी $5 पर यूनिट मिलेगा। इसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं आपको मिल रहा। वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर क्या है, आपकी जो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है और जो आपके पास सेटअप कॉस्ट है वही सारी की सारी इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट हैं। स्टॉक आउट्स आर कम्प्लीटली अवॉइडेबल। स्टॉक आउट को अवॉइड आप कर सकते हो अगर आप सही वक्त पे ऑर्डर करो और सही अमाउंट में ऑर्डर करो तो आपका स्टॉक आउट कभी नहीं होगा। ये सारी की सारी अजम्पशंस बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो है वो अगर ये सारी के सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो आप EOQ मॉडल यूज कर सकते हो। आपके पास इंडिपेंडेंट डिमांड है, किसी और चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रही। अब बेसिकली ये आपको क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ आपको बेसिकली शो कर रहा है टाइम कि जी टाइम बढ़ रहा है ऑन द एक्स एक्सिस और ये जो है वाई एक्सिस पे इन्वेंट्री का लेवल है। ठीक है कि जी एट दिस पॉइंट आपके पास इन्वेंट्री जब आपने स्टार्ट की कि जी आपके पास लेट से ये 100 आइटम्स, हम कह देते हैं कि जी ये 100 आइटम्स इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। अब ये जो ट्रेंड शो कर रहा है कि जी आपको पता है कि जी प्रोडक्ट की जो डिमांड है दैट इज कांस्टेंट और वो आपको पता है। तो ये जो लाइन है ये आपको शो कर रही है कि जी हर रोज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कस्टमर आपके पास आते जाएंगे, आपसे चीज मांगेंगे, आप इन्वेंट्री से उनको चीज देते जाओगे, आपकी इन्वेंट्री का जो लेवल है आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। एक पॉइंट पे आके आप उनको ऑर्डर करोगे, अपने सप्लायर को ऑर्डर करोगे कि जी मुझे चीज भिजवा दो, वो सप्लायर आपको ऑर्डर चीज पहुंचाएगा तो फिर एकदम से आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी या जो इन्वेंट्री है वो बढ़ जाएगी। फिर आपका कस्टमर आपसे आएगा, चीज मांगेगा, आहिस्ता 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 आपका इन्वेंट्री का लेवल कम होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जिसपे आप अपने सप्लायर को कहोगे मुझे फिर से चीजें भेजो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजें कम होंगी और फिर एकदम से आपको सप्लायर एकदम से पूरे का पूरा ऑर्डर आपको भेज देगा। तो ये क्या हो रहा है, इन्वेंट्री की जो यूजेज है ओवर टाइम आपको पता चल रही है। एवरेज वैल्यू जाहिर बात है उसका डिवाइडेड टोटल इन्वेंट्री साइज जो है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री साइज आ जाता है। तो EOQ जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मॉडल है वो किन किन चीज़ों को कंसिडरेशन में रख रहा है, वो सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट को रख रहा है और होल्डिंग कॉस्ट को। ठीक है, अब हमने देखना है कि जी हम कितनी क्वांटिटी का ऑप्टिमम ऑर्डर विच इज क्यू स्टेरिक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज Q, कितने साइज का ऑर्डर मंगवाएं, अपने सप्लायर से कितना ऑर्डर मंगवाएं, 200 का ऑर्डर मंगवाएं, 400 का ऑर्डर मंगवाएं, 500 यूनिट्स का ऑर्डर मंगवाएं, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर हम मंगवाएं अपने सप्लायर से विच इज एन ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसके अंदर क्या ये किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, हमें टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, क्या सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अब आपके पास ये जो है एक्स एक्सिस ये शो कर रहा है ऑर्डर क्वांटिटी और ये आपको शो कर रहा है एनुअल कॉस्ट, इन्वेंट्री की जो एनुअल कॉस्ट है। ठीक है, अब आप जितनी ज्यादा चीज मंगवाओगे उतनी ज्यादा आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आप गोदाम के अंदर चीज मंगवाओगे उसके लिए उतना ही ज्यादा बड़ा गोदाम आपको चाहिए होगा, उतनी ही ज्यादा आपको बिजली खर्च करनी पड़ेगी या यूटिलिटीज खर्च करनी पड़ेगी या ह्यूमन रिसोर्स खर्च करना पड़ेगा उस बड़े गोदाम को या उस बड़ी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। तो आपकी जो सेटअप जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है वो जितना बड़ा आप ऑर्डर मंगवाओगे उसके साथ साथ होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है कि जी आपने ऑर्डर किया अपने सप्लायर को, इस कम्युनिकेशन के लिए आपने किसी बंदे को हायर किया या किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, उसको पैसे दिए, अगर अखबार में आप एडवर्टाइज कर रहे हो, कोई टेंडर फ्लोट कर रहे हो तो उसमें भी पैसे लगेंगे। तो ये क्या है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो जब ऑर्डरिंग कॉस्ट आप जितनी दफा ऑर्डर करोगे उतनी ज्यादा ऑर्डर बढ़ेगी, उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जाहिर बात है। तो वही बात है, जितनी ज्यादा दफा आप
थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में चीज मंगवाओगे तो उतनी आपको कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी। अब आप ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना शुरू कर दो तो आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी आपको ऑर्डर करना और उसको रिसीव करना, सेटअप करना कि जी अपने प्रोसेस को चलाना बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री। अब जितना छोटा क्वांटिटी में मंगवाओगे तो उतने ज़्यादा आपको अपनी जो प्रोसेस है उसको भी सेटअप करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो जितना बड़ा क्वांटिटी में आप ऑर्डर दोगे ना तो उसके हिसाब से आपका एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आएगा सेटअप एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर। मगर जितना ज़्यादा आप ऑर्डर मंगवाओगे तो होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज वो होगा जहां ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब ये देखें, ये जो है ये टोटल कॉस्ट है, इसके अंदर ये वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो एडअप हुआ है। आप देखें एक खास हद तक ये ऐसे जाती है और फिर ये लीनियरली बढ़ रही है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट इसका इफेक्ट कम हो रहा है और इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों लाइंस के एग्रीगेट इफेक्ट से हमने ड्रॉ की हुई है इसके अंदर। तो अब आपका जो ऑप्टिमम ऑर्डर है ना वो इस पॉइंट पे होगा। इस ऑर्डर क्वांटिटी पे आप जब ऑर्डर करोगे तो उसकी मिनिमम आपको कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इसकी वर्किंग हम दिखा देते हैं कि जी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बेसिकली जो आपकी जो दोनों कॉस्ट है ना, सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट शुड बी इक्वल टू योर होल्डिंग कॉस्ट, जहां वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ओवरऑल इसकी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपके पास एनुअल सेटअप कॉस्ट किस तरह होगी, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स फॉर इन्वेंट्री आइटम्स क्या है, नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर क्यू, और इसी तरीके से सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट फॉर ईच आइटम्स। एनुअल सेटअप कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर मल्टीप्लाई बाय सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये आपके पास एनुअल सेटअप कॉस्ट आ गई। एनुअल सेटअप कॉस्ट के अंदर एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेटअप और ऑर्डर या कॉस्ट पर ऑर्डर से तो आपके पास एक ये रिलेशनशिप आ रहा है विच इज एनुअल सेटअप कॉस्ट। ठीक है, एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या है कि एक साल में कितनी दफ़ा आपको सेटअप करना पड़ा है। जाहिर बात है जितनी दफ़ा आपने ऑर्डर किया है और हर ऑर्डर में आपको सेटअप एंड ऑर्डर कॉस्ट कितनी लगी है वो आपकी एनुअल सेटअप कॉस्ट है। इस रिलेशनशिप से गुजार के आपके पास एक वैल्यू आ गई विच टेल्स यू एन एनुअल सेटअप कॉस्ट। दूसरा आपको बता रहा है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट वही है ना कि जितनी इन्वेंट्री आपके पास है और होल्डिंग कॉस्ट उस पर कितनी पड़ी है, तो जितना आपने ऑर्डर किया है उसका एवरेज वैल्यू, ऑर्डर क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ही है। तो ये आपके पास एक एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री के अंदर एक चीज रखने के लिए पूरा पैसा आपने कितना खर्च किया है, इन्वेंट्री को पूरे साल में आपने कितना आपने पैसा उस पर खर्च किया इन्वेंट्री में चीज रखने के लिए, तो आपके पास ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। जब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ये दो रिलेशनशिप हमने देखा है ना कि जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल उस पॉइंट पे निकलेगा, ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जिस पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं। तो आपके पास एक ऑप्टिमम ऑर्डर का रिलेशनशिप आ गया है। दिस इज द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज जो आपको ऑर्डर करना चाहिए विच इज 2D S डिवाइडेड बाय H होल अंडर रूट। इसके अंदर D क्या है, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स फॉर आइटम। इसी तरह के जी जो आइटम आप स्टोर कर रहे हो इन्वेंट्री में उसकी एनुअल डिमांड कितनी है। S इज दी सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, और H जो है वो आपका होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एक यूनिट को इन्वेंट्री में होल्ड करने का एक साल के अंदर कितना पैसा लग रहा है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास हो तो आप एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हो, कीपिंग इन कंसिडरेशन दैट ऑल दी अजम्पशंस जो हमने 6 की 6 अजम्पशंस जो हैं वो जो 6 की 6 अजम्पशंस हैं वो पूरी हों तो आप ये मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आपके पास एक आइडिया आ जाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि जी
कोई प्रोडक्ट है उसकी जो एनुअल डिमांड है वो 1000 यूनिट्स की है, आपका जो इसके अंदर सेटअप एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज़ $10 पर ऑर्डर के जी। अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो सप्लायर पे तो आपको $10 लगता है। होल्डिंग कॉस्ट क्या है कि जी एक आइटम को इन्वेंट्री के अंदर होल्ड करने का 1 साल का कितना पैसा है। तो उसके बाद आपको पता चल गया कि जी आपको 200 चीज़ों का ऑर्डर करना चाहिए, यानी कि अंदर साल के अंदर आपकी 1000 चीज़ों की डिमांड है ना, तो आप हर बार जब ऑर्डर करोगे तो सब अपने सप्लायर को 200 यूनिट्स का ऑर्डर दोगे कि जी हमें 200 चीज़ों का माल पहुंचा दो, या 200 प्रोडक्ट्स के लिए माल पहुंचा दो, या 200 आइटम्स पहुंचा दो। तो इससे आपको एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता चल जाती है कि जी कितना मैंने मंगवाना है अपने सप्लायर से। अब आपने देखना है कि जी ऑप्टिमम ऑर्डर तो हमने निकाल लिया कि जी 200 यूनिट्स क्या है। अब हमने देखना है कि जी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, कि जी साल के अंदर आप कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सिंपल सा रिलेशनशिप है कि जी जितना आपके पास डिमांड है, 2000 चीज़ों की साल की डिमांड है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज 200 है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जी 5 ऑर्डर्स आप साल के अंदर करोगे। इट्स अ सिंपल रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, ये भी बड़ा सिंपल सा है कि जी जितनी दफा आपने ऑर्डर किया है और जितने दिन आप काम कर रहे हो साल में जितनी दफा आपने ऑर्डर किया, 5 दफा आप साल में ऑर्डर कर रहे हो। साल के अंदर आप 250 डेज काम करते हो, 365 डेज तो नहीं, हर वीक के 7 दिन तो नहीं काम करते ना, वीक के 5 दिन काम करते हैं, तो 365 डेज होते हैं आपके पास साल के अंदर। 52 वीक्स होते हैं आपके पास साल के अंदर, तो 52 वीक्स के अंदर ऑलमोस्ट 2 दिन तो आप काम ही नहीं कर रहे होते, सैटरडे संडे, तो 104 दिन तो आपके वीकेंड्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल काम आप कर रहे हैं वो 240 दिन काम कर रहे हैं। 5 दफा आप साल में ऑर्डर कर रहे हैं, तो 50 डेज बिटवीन ऑर्डर। अब आपने हर ऑर्डर के दरमियान में जो एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स है कि जी हर 50 दिनों बाद आपने ऑर्डर करना है। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या आप कर सकते हो, जो ABC एनालिसिस के अंदर हमने पॉलिसीज की थी कि जी हमें पता होना चाहिए कि आइटम ए जो है या कैटेगरी ए आइटम जो है वो हर महीने अपडेट आनी चाहिए, हर 2 महीने बाद अपडेट आनी चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि जी एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स 50 है, तो आप अपने उस तरीके से पॉलिसी बना सकते हो कि जी हर 50 दिन बाद हमने ऑर्डर करना है, तो किन किन चीज़ों का ऑर्डर करना है, तो उसके हिसाब से आप अपना रिकॉर्ड कीपिंग भी बेहतर कर सकते हो। अब हम अगर एनुअल कॉस्ट, हमने एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल ली कि जी हर ऑर्डर के अंदर 200 यूनिट्स हम मंगवाएंगे। आपको ये भी पता चल गया कि साल में कितने ऑर्डर्स होंगे। आपको ये भी पता चल गया कि जी ऑर्डर्स के दरमियान में कितना टाइम होगा। अब हम टोटल एनुअल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। एनुअल कॉस्ट क्या है, सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये 2 रिलेशनशिप हमने पहले से ही निकाले हुए हैं डेरिवेशन के अंदर। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इसके अंदर आप डिमांड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू डालोगे। क्वांटिटी क्या है, ये ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो आपने निकाली हुई है, आपको 2 से डिवाइड करके आप इसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू डालोगे, तो टोटल कॉस्ट क्या आपके पास आ जाएगी। टोटल एनुअल कॉस्ट जो सेटअप और होल्डिंग की होगी वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जी आप साल के अंदर जो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट हैं, जिसके अंदर आप सेटअप कर रहे हो और जिसके अंदर आप आइटम्स को स्टोर कर रहे हो, वो इतनी कर रहे हो। अब जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, इट्स अ रोबस्ट मॉडल। इसको रोबस्ट इसलिए कहा जाता है कि जी किसी भी सिनेरियो के अंदर ये आपको एक एक्सेप्टेबल वैल्यू देता है। द EOQ मॉडल इज रोबस्ट, इट वर्क्स इवन इफ ऑल पैरामीटर्स एंड assumptions आर नॉट met, यानी कि अगर आपकी जो पहली 6 assumptions हमने डिस्कस की थी ना, assumptions, उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है तो फिर भी ये चलता है। थोड़ा बहुत कुछ आपको आइडिया बता देगा कि जी इतना, इवन इफ इट इज़ इंडिपेंडेंट डिमांड है। हम देखते हैं ना कि कौन कौन से उसके 5 assumptions थी। आपके पास डिमांड नोन थी, लीड टाइम नोन था,
आइटम इंस्टेंटेनियस थे, क्वांटिटी डिस्काउंट्स नहीं थे आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ओनली सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट थी, स्टॉक आउट आर कम्प्लीटली अवॉइडेबल। अब इनमें से थोड़े बहुत अजम्पशंस अगर हम ना भी रखें कि जी हमें आइडिया उनका ना हो, तो फिर भी हम EOQ का मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत विद लेसर एक्यूरेसी। द टोटल कॉस्ट कर्व इज़ रिलेटिवली फ्लैट इन द एरिया ऑफ EOQ। तो टोटल ओवरऑल जो आपका जो EOQ मॉडल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, दैट इज़ अ रोबस्ट मॉडल. इट गिव्स यू acceptable values at different it gives you acceptable values under different parameters, under the satisfaction of different parameters. तो आज अगर हम डिस्कस करें हमने क्या क्या कर लिया, तो आज हमने इन्वेंट्री से स्टार्ट किया। पिछले लेक्चर के अंदर तो मैंने आपको बता दिया था ना इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का काम के मकसद क्या होता है और इन्वेंट्री की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जी रॉ मटेरियल्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होती हैं, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट नई चीज़ जो हमने पढ़ी थी, MROs की भी इन्वेंट्री होती है, मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी भी इन्वेंट्री होती है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि जी आप ABC एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, रिकॉर्ड एक्यूरेसी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है इन्वेंट्री के अंदर। साइकिल काउंटिंग क्या होती है कि जी अगर आपने बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगाना इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को कीप करने के लिए, तो यू कैन यूज़ साइकिल काउंटिंग, पॉलिसी ऑफ साइकिल काउंटिंग। ये जो साइकिल काउंटिंग होती है ये ABC एनालिसिस के इन कंजंक्शन विद ABC एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। हमने ये भी देखा कि जी इन्वेंट्री कंट्रोल सर्विस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने जो मॉडल डिस्कस किए उसके अंदर सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डिमांड की कैटेगराइजेशन कर दी कि जी इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होती है और डिपेंडेंट डिमांड क्या होती है। क्योंकि इन्वेंट्री मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना कि जी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इन्वेंट्रीज की। फिर हमने इन्वेंट्रीज की कॉस्ट देख ली, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, सेटअप कॉस्ट क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया है, पहले भी लेक्चर्स के अंदर बताता रहा हूँ। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जाके बुक के अंदर जाके इसको देखें कि जी इनकी एक्सप्लेनेशन या इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा बुक को गो थ्रू करें, गूगल पे जाके सर्च करें एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, सेटअप कॉस्ट क्या होती है, सर्विस सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी होल्डिंग कॉस्ट होती हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती हैं, सेटअप। ये हर बिजनेस की अपनी अपनी होती हैं, मगर बेसिकली आपकी एक इन्वेंट्री है, पीछे आपका सप्लायर है इन्वेंट्री को जो भर रहा है, आगे आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक बंदा आपकी इन्वेंट्री के अंदर चीज़ डाल रहा है, एक प्रोसेस आपकी इन्वेंट्री से चीज़ निकाल रहा है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट होती हैं जो इन सप्लायर एंड इन्वेंट्री के इंटरेक्शन पे होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंट्री के इंटरेक्शन पे होगी और प्योरली इन्वेंट्री की होंगी। तो डिफरेंट कॉस्ट होती हैं डिफरेंट इंटरेक्शंस पे, ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड सेटअप कॉस्ट इनको हम कहते हैं। फिर हमने इन्वेंट्री मॉडल देख लिए ओनली फॉर इंडिपेंडेंट डिमांड, कि अगर आपकी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिनके इन्वेंट्री के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इंडिपेंडेंट डिमांड है, एक चीज़ की डिमांड दूसरी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट नहीं करती, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल यूज़ करते हैं। लेट्स सी let us continue if we could see another important point here. अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो था EOQ, उसने हमें बता दिया कि जी कितना हमने मंगवाना है, हाउ मच टू आस्क फ्रॉम योर सप्लायर्स, कि जी हमें इतनी चीज़ चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ने इस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जी कितना ऑर्डर का साइज होना चाहिए। अब रीऑर्डरिंग पॉइंट जो होता है जिसको ROP हम कहते हैं, ये हमें बताता है व्हेन, कि जी कितने दिनों बाद ऑर्डर करना है। अब आपने देखा होगा मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था इस डायग्राम को, तो मैं कहता था कि जी प्रोडक्ट आपकी ये चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर पड़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड आई कस्टमर की तरफ से, एक पॉइंट पे रीऑर्डर कर दिया, सप्लायर को कहा कि अब हमें चीज़ भेजो, आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता आपकी डिमांड ख़त्म हुई, सप्लायर ने आपको चीज़ पहुंचाई और फिर आपकी इन्वेंट्री का लेवल बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ हुई, एक पॉइंट आया जिस पे आपने रीऑर्डर किया सप्लायर को, और इस पॉइंट पे सप्लायर ने आके आपको फिर एडअप कर दी। अब तो ये रीऑर्डरिंग पॉइंट जो है ना, ये EOQ से हमें ये पता चल गया कि जी कितना मंगवाना है, कितना ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, कि जी ये इतना मंगवाना है हमने सप्लायर से, मगर किस पॉइंट पे मंगवाना है, इसको रीऑर्डरिंग पॉइंट कहा जाता है। उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जी आपको reordering point is equal to demand per day multiply by lead time for new orders in day। lead time क्या है कि जी कितने दिनों में आपका सप्लायर आपको चीज पहुंचा सकता है। ठीक है, लेट्स सी कि जी आपको पता है कि जी ये आपकी प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है कस्टमर की तरफ से, कि जी कस्टमर आ रहा है आपसे चीज मांग रहा है, आप अपनी इन्वेंट्री से उसको वो चीज पहुंचा रहे हो, उसकी डिमांड कांस्टेंट है। अब ये वो पॉइंट है कि जी आपको पता है कि मेरा सप्लायर मुझे 4 दिन से पहले चीज नहीं पहुंचा सकता, मैं 2 दिन उसको दूंगा, 2 दिन मेरे लगेंगे ऑर्डर करने में, 2 दिन वापस ऑर्डर को आने में लगेंगे, तो 4 दिन से पहले नहीं आ सकता। तो ये आपको पता है लीड टाइम जो है वो 4 दिन है या 2 दिन है। तो जब आपको ये पता चल जाए और आपको डिमांड उसकी पता चल रही है कि जी कितनी डिमांड में वो यूज हो रहा है, तो आप ये वाला रीऑर्डरिंग पॉइंट भी बड़े इजीली निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो कि जी आपके पास जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो हो, ये एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जी एक प्रोडक्ट है आईपॉड्स, कि जी उनकी 8000 आईपॉड्स की डिमांड है पर साल के अंदर, आपके 250 डेज हैं जिसके अंदर आप साल के अंदर काम करते हो। लीड टाइम फॉर ऑर्डर इज 3 डेज, के जी 3 दिन से पहले आपका सप्लायर आपको चीज पहुंचा नहीं सकता। तो आप पर यूनिट डे डिमांड देख रहे हो कि जी पूरी साल की तो इतनी है, साल में इतने दिन हम काम करते हैं, तो हर दिन 32 यूनिट्स यूज हो रही हैं। जब आपके पास हर दिन की डिमांड आ गई है, आपको लीड टाइम पता है, तो फिर आपको ये पता चल गया जब मेरी इन्वेंट्री में 96 यूनिट्स रह जाए तब मैंने रीऑर्डर करना है। 96 से कम होंगे तो क्या होगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। 96 से ज्यादा होंगे तो स्टॉक आउट नहीं होगा, ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ जाएगी। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट निकालना है तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि जी साल की डिमांड कितनी है, क्योंकि डिमांड कांस्टेंट है इसके अंदर, डिमांड की यूटिलिटी कस्टमर की तरफ से जो डिमांड आ रही है दैट इज कांस्टेंट। आपको पता है कि साल के अंदर कितनी डिमांड है, आपको पता है कि साल के अंदर मैं इतने दिन काम करता हूं, आपको ये भी पता है कि मेरा सप्लायर जो है मुझे इस ये लीड टाइम है उसका, अगर मैं उसको आज कहूंगा तो कल परसों तरसों 3 दिन बाद वो मुझे पहुंचाएगा। तो आपको ये लीड टाइम भी पता है। ये अगर सारी इंफॉर्मेशन है तो आप रीऑर्डरिंग पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। आप डेली डिमांड को मल्टीप्लाई बाय 3 डेज कर दो कि जी अगर मैं आज ऑर्डर करता हूं तो 3 दिन बाद आएगा, डेली डिमांड इतनी है, तो इतनी यूनिट्स जो ये वैल्यू आ रही है ना रीऑर्डरिंग पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है ये बड़ी। अब जब आपकी इन्वेंट्री में 96 यूनिट्स रह जाएंगी ना, आप ऑर्डर करोगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका कस्टमर आपसे चीज लेता जाएगा। फिर एकदम से 3 दिनों बाद, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 3 दिन है, 3 दिनों बाद आपका सप्लायर जो आपको फिर से चीज पहुंचा देगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपकी इन्वेंट्री के अंदर 96 यूनिट्स रह जाएंगी, आप फिर से रीऑर्डर करोगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका कस्टमर आपसे चीज मांगेगा, फिर आपका सप्लायर आपको पहुंचा देगा। ये जो है ना, ये रीऑर्डरिंग पॉइंट है कि जी इस जब इन्वेंट्री का लेवल इस पॉइंट पे आ जाए तो फिर मैंने रीऑर्डर करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमने ओवरऑल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज पढ़ ली है, हमने रीऑर्डरिंग पॉइंट्स पढ़ लिए। आई थिंक आई शुड कंक्लूड टुडेज लेक्चर। दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।